ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਐਸਓਚੈਮ ਦੇ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ 2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਟਲ ਹਯਾਤ ਰੀਜੈਂਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਸਓਚੈਮ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਆਈਟੀਐਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। जो हमने सबमिशंस गवर्नमेंट को दी हैं वो तकरीबन उन्होंने अपनी पॉलिसी में, ड्राफ्ट पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट भी किया है। एंड हमने 4-5 में हमने वो जो इवेंट किया था, दैट वाज प्रोबेबली वन ऑफ द इवेंट इन विच वी वर एबल टू ब्रिंग टुगेदर मैनी पीपल हु हैव taken up their startups, and it was a kind of a big motivation to everybody that there is actually a council which is, like Vijay ji mentioned, not something which has come to take but to give something back to the society. After that meeting as well, I've seen that many people regularly interacted with us that how we can do more to the society. जैसे जो ओल्ड चेंबर थे यहाँ पे वो आते थे, वो वही पुराने इश्यूज के आसपास घूमते रहते थे। एटलीस्ट एसोचैम के आने से ये हुआ है कि अब हमारे को इनपुट्स आ रहे हैं which actually would make a difference in the future. So now they took our inputs on the new budget also जो अभी अनाउंस हुआ था। So what जैसे कि विजय जी ने कहा कि what matters is the quality of membership we bring on board. So almost all top industrialists and top business minds in J&K are now associated with ASSOCHAM as members, or they are patron members, or at different levels. Himachal is a pure state where the Himalaya is. There's a lot of I always say we are sitting on the gold mine, but we like a king of no land. That we are kings, but we are not utilizing that potential in full capacity. So that's there, which I think we have able to focus on that with the government of Himachal, and they are thinking on those terms. But I think there need to be more push before we can. It's little the conceptual part. If we talk about at that bureaucratic and government level, there needs more push. Himachal Pradesh during the peak times of COVID, under his leadership, Himachal Pradesh took the responsibility to create awareness. He was phenomenal in bringing, and with Vipin ji, I'm very thankful to Vipin ji for his support. He and Vipin ji, they joined hands. Raman ji is with us here. They together joined hands and they brought in some of the leading medical experts of India on platform of ASSOCHAM. We had the pleasure of hosting Dr. Trehan, Dr. Naresh Trehan, Dr. B. Mohan and Dr. Guleria, and they created that awareness for COVID-19 during that particular session. So thanks to Soti Saab for his leadership. So we do not believe that you did not do much great. Thank you very much. Just offering my services a little more, because I know that often we are stuck at the government level, and knowing both sides of the table is an advantage for me, which can become an advantage for you also. In the sense that often we approach the government with something which is not doable, but it can be made doable if it is broken down into elements which are practical, which are achievable. And what was said, I think Mr. Goyal said it, that policy planners and officers who are in the helm, unfortunately they don't stay there for very long. So the government doesn't have that capacity to have somebody for 6 years in a particular place. We can't think that long. So it is little components which work. So please come to me through Gaurav, and I can definitely work with all the states and the company also at times to meet people who matter, because I know how the system works a little more. Just wanted to offer that help. Thank you.
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸੋਚੈਮ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ I think time is not on our side, first thing. Some of the guests have joined us outside. पर मुझे तो आप सबसे मिलके और आप सब कुछ सुनते I got enriched. ये विजय शर्मा जी बात कर रहे थे कि नौजवान आगे आए, लेकिन आप में जो जोश है विजय जी वो कई नौजवानों से आते हैं। सोडी साहब वेरी गुड, आपका आयुष ब्रांड तो बड़ा बंदे को सुंदर बनाने वाला ब्रांड है, वेरी पॉपुलर एंड द वे यू आर टेकिंग इनिशिएटिव इट्स एप्रिशिएबल and I must congratulate to Gaurav that he has selected all state leaders. They are very efficient, full of enthusiasm, Mr. Batra, and happy to see Tima साहब boiler बनाते थे और बेटा वो film city में काम कर रहे हैं. He told me the business planner और strategist. तो यार अगली बार वो film city पे आने वाली तो मीटिंग रखते हैं. एक चीज होती है पॉट बॉयलर इज अ स्टोरी व्हिच हैज ऑल सस्पेंस और पॉट बॉयलर फिल्म्स बनाए बॉयलर टू ये 2 साल कोविड टुक ओवर, नई बातें हुई, ये नॉर्मल एंड देन वी इन्वेंटेड दिस जूम कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दैट, बट एवरीथिंग सेड एंड डन अगर जूम हम फैमिली के साथ करने लगे, बच्चों के साथ करने लगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी जो 1-to-1. So the purpose was to have a get together this evening, and then we speak to each other, know each other, and set a ball rolling for the next meeting to be more productive. So I think we shouldn't keep our guests waiting. Thank you very much, Mr. Goel, Mr. Gadia. You contributed a lot. Thank you very much. Thank you very much. इस मौके एसोचैम ਵੱਲੋਂ एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। देखिए 2 साल तो कोविड ने जो वर्चुअल मीटिंग्स थी उन्हीं पे चले गए लोग, और पर्सनली मिलके आप आपस में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते थे। तो सारे स्टेट लीडर्स काम कर रहे थे अपनी अपनी जगह पे, सब दिक्कतों के बावजूद, पर इस बार सोचा गया कि एक बार एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें सबके जो थॉट प्रोसेस है उनको एक रास्ता दिया जाए, एक दिशा दी जाए, so that everybody is enlightened from each other's thoughts and processes। और नए साल का जो जैसे गौरव जी ने बताया कि फोकस रहेगा हमारा स्किल डेवलपमेंट पे, उसका वे आउट तैयार किया गया। एमएसएमई के अंदर एसोचैम जैसी संस्था जिसके अंदर हम लोग, जैसे हम शायद बहुत बड़े हैं लेकिन मेरे इकोसिस्टम के अंदर चाहे सप्लाई साइड ले लीजिए चाहे वो डिमांड साइड ले लीजिए, बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं। तो ये भी हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि हम ऐसे क्लस्टर्स को अडॉप्ट करें। तो हम वहाँ पे कुछ आईटीआईज को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं कि वहाँ पे डाई फिटर हो जाए, प्रेसिंग वाला हो जाए, पॉलिशिंग वाला हो जाए, वेल्डिंग वाला आ जाए, कि जब वहाँ से आईटीआई के बच्चे निकलेंगे या तो अपना बिजनेस खोल सकते हैं। जैसे आजकल देखते हो आप स्टेनलेस स्टील के गेट ग्रिल्स आते हैं, वो छोटे छोटे लोग होते हैं, खुद ही ओनर होता है, खुद ही वेल्डर होता है। तो एफर्ट्स बहुत हैं। I strongly feel that government has recognized that unless there is a hand holding with the industry and focus is on the demand led
upgradation and upskilling of the skill, then it will be possible. ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਐਸਓਚਐਮ ਦੇ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ गए। एसोचैम नॉर्थ इंडिया काउंसिल की आज मीटिंग हुई है जिसमें काफ़ी इंट्रोडक्शंस हुए, काफ़ी वेलकम हुआ और काफ़ी जो लोगों ने काम किया ड्यूरिंग द लॉकडाउन उस पर उनको शाबाशी मिली। साथ ही आगे क्या करना है उस पर स्ट्रैटेजी बनाई गई और जो चेयरमैन है मिस्टर मित्तल उनकी देखरेख में और बाकी सारे जो चेयरमैन्स हैं वेरियस वर्टिकल्स के, जैसे मैं पॉलिसी एडवोकेसी नॉर्थ इंडिया का चेयरमैन हूँ, तो हम लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस किया। नए मेंबर्स ने भी अपने इनपुट्स दिए और काफ़ी प्रोडक्टिव मीटिंग रही और ये भी 2 साल के बाद हुई है, इसलिए काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में एसोचैम का रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिससे कि पॉलिसी जो है गवर्नमेंट्स की और इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए वो काफ़ी इवॉल्व करेगी। एसोचैम ने एक्चुअली इनिशिएटिव लिया था जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ 27 मार्च 2020 से हम लोगों ने वर्चुअल इंटरेक्शंस इनिशिएट कर दी थी एंड टिल दैट डे अभी तक हम लोगों ने कम से कम 5,000 से ज़्यादा वर्चुअल इंटरेक्शंस करी हैं और इम्पैक्ट किया है कम से कम 50 लाख लोगों को। और जैसे ही हमें ये इंडिकेशन मिला कि अब फिज़िकल इंटरेक्शंस शुरू कर सकते हैं तो हम लोगों ने ये पहली मीटिंग रखी जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। सभी स्टेट से यूटी से लोग कनेक्ट हुए। लद्दाख में हमने अपनी काउंसिल इनिशिएट करी, पहला चैम्बर था जिसने लद्दाख में इनिशिएट करी। जैसे ही लद्दाख एक यूटी बना, JNK में हमने अपनी काउंसिल इनिशिएट करी, काफ़ी एग्रेसिवली काम हुआ। अभी रिसेंटली हरियाणा के बजट में एसोचैम ने एक बहुत बड़ी सक्सेस पाई जब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने हमारे कम से कम 10 रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया, जिनमें से एक वेंचर कैपिटल फंड की अनाउंसमेंट उन्होंने करी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। MSME को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। टूरिज़्म के नए नए एवेन्यूज़ आइडेंटिफाई करने की उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। मेरी ये पहली इंटरैक्शन हैगी है एसोचैम ग्रुप दे नाल। दे हैव ऑफर्ड मी कि मैं हैड करा नॉर्दर्न रीजन फॉर दी वुमेन एम्पावरमेंट, जिहड़ियां वुमेन दियां जिहड़े उन्हां दे अचीवर्स हैं उन्हां दे बारे। दैन ऑफ कोर्स गोइंग एक्सपैंडिंग दैट कि जिहड़े द वुमेन हु वांट टू कम इन फोरफ्रंट, दे वांट टू वर्क और कुछ करना चाहते हैं, भावें वो एंटरप्रेन्योरशिप दा, हु डोंट हैव बच्चे गर्ल्स हु डोंट हैव रियली उन्हां दी विजन हुंदी है बट उन्हां नूं समझ नहीं आंदा कि अगे स्टैप्स केड़े लेने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वुमेन को खुद को एम्पावर करने के लिए उनको क्या दिशा दिखानी है। सो एसोचैम ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ पे जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं वो सामने आएंगे और उनको उनसे प्रोत्साहन लेके जो कुछ करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं। इवन द यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या जिन्होंने अपनी एजुकेशन फिनिश कर ली है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड विल ब्रिंग देम फॉर्मली एट अ प्लेटफॉर्म। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੋਪ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੋਚੈਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫੋਰਮੈਨ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਊ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਮਿਲੂਗੀ ਐਂਡ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ग्रो करूँगी। हम लोग फार्मा और जितनी भी इंडस्ट्री नीड बेस्ड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस कर रहे हैं कि हमें एक ऐसी जगह दे दी जाए जहां हमें स्टेट का सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, बाकी का काम एसोचैम करेगी। स्किल को इंडस्ट्री से नीड एज पर द इंडस्ट्री नीड वहाँ के एक्सपर्ट लाके उन बच्चों को एक रेडी प्रोडक्ट बना के इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करें। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट की जो हमारी इंडस्ट्री है उसको पूरा वो मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या प्रोडक्ट मिलेगी, सो दैट उनकी प्रोडक्शंस जो है हेल्ड अप ना हो। क्योंकि हर एक इंडस्ट्री को पहले जो रॉ बच्चे लेके उनको अपनी ट्रेनिंग देनी पड़ती है और उनको उसके बाद में वो यूज़फुल होते हैं, तो एक टाइम जाता है, उसमें टाइम स्पेंड होता है, मनी स्पेंड होती है। तो ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमारा काम इसके ऊपर स्टेट के साथ में चल रहा है। Today I'm at the ASSOCHAM's annual meeting at Chandigarh in Chandigarh. So it's very pleasure to be the part of ASSOCHAM and मैं अभी जर्नी शुरू कर रहा हूँ ASSOCHAM के साथ में as a co-chair for Punjab and it's really a pleasure and I'm very excited to be the part of this association because पंजाब को नया चाहिए। नया क्या चाहिए? क्योंकि हर समय के बाद कुछ नया आना आता है। इंडस्ट्री है तो एसोचैम का मतलब ही है कि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज बनाना। सो वो ब्रिज एसोचैम बना रहा है। जैसे आज मीटिंग हो रही है, एसोचैम का विजन चल रहा है, एसोचैम कुछ क्या करेगा, तो इसी तरह एक इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या काम है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों चेंज करता है। हम लोगों ने फिल्म सिटी क्यों ऑप्ट किया, टोटली मैकेनिकल से निकल के फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आना, बिकॉज ये नीड है स्टेट की। पंजाब इज़ अ लैंड लॉक्ड स्टेट और लैंड लॉक्ड स्टेट में क्या ऑप्शन है। मेरे जितने एसोसिएट्स हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइकिल्स में है, कोई टेक्सटाइल में है, कोई बेवरेजेस में है, कोई डिस्टिलरीज में है। सो देयर वाज नीड ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर न्यू इंडस्ट्री। जब से मैंने एसोचैम के साथ काम करना शुरू किया है, हमारी काउंसिल काफ़ी ज़्यादा काम स्टार्टअप्स की तरफ, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और जो इंडस्ट्रीज़ की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ ध्यान दे रही है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जब हमारा काउंसिल लॉन्च हुआ था उसमें हमने एक 100 स्टार्टअप्स को मौका दिया था जो J&K में है कि वो आके हमारे को प्रेजेंट करें। 100 में से 30 हमने चूज़ करे थे जिनकी फाइनल प्रेजेंटेशन हुई थी, जिसमें एक दिल्ली से टीम आई थी, एक्सिस बैंक से आए थे, इंक्यूबेशन सेंटर है एक दिल्ली में, उधर से लोग आए थे। उनमें से जो टॉप 3 थे उनको फिर नेशनल लेवल पे कम्पीट कराया गया जहाँ पे उनकी इंक्यूबेशन हुई प्लस उनको सीड फंडिंग दिलवाई गई। सो ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अप्रिशिएट किया गया और हम आगे भी यही करना चाहेंगे कि हम एक ऐसा वहाँ एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें कि जिससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, स्टार्टअप कल्चर प्रमोट हो और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आए। हमारा पाउंटा साहब में हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है जिसमें हम न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसमें जो हमारा रिलेशनशिप है वो MNC फार्मा इंडस्ट्री से है जिसके लिए हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनको देते हैं। हमने ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया। वी आर दी पार्टनर्स विद द हर्बल लाइफ, वी आर दी पार्टनर विद Danone, we are the partner with GNC, we are the partner with many pharma companies like Sun Pharma, Dr. Reddy, Zydus and many more. हमारा जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में जो 2 करोड़ का जो लिमिट है उसको 5 करोड़ की लिमिट कर दी जाए ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो सर्वाइव कर सके। और दूसरा जो हमारी पेमेंट्स हैं वो MSME की जो पेमेंट्स हैं, हालांकि MSME एक्ट 2006 बना हुआ है लेकिन उसमें प्रावधान है 45 दिन तक पेमेंट हमारे बिलों का भुगतान होना चाहिए। जो भी स्मॉल स्केल से सामान परचेज़ करती हैं उनके बिलों का भुगतान 45 दिन में अगर नहीं होता तो वो फॉर्म 1 में वो अपनी रिटर्न दें, उसमें शो करना पड़ता है कि आपने 45 डेज़ में
पेमेंट स्मॉल स्केल को क्यों नहीं दी, उसके क्या रीज़न है, और आगे से इंश्योर करें कि विदिन 45 डेज़ हमारी पेमेंट दें। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਐਸਓਚੈਮ ਦੇ ਫਰਸਟ ਸਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1985-86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਬੁਲੰਦੀ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆਏਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਿਟਸ ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸਓਚੈਮ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के कणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका।